پاکستان کی پوری تاریخ میں پاکستان کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، پاکستان کے کو استعمال کرتے ہوئے، پاکستان کے پیسے کو استعمال کرتے ہوئے تم نے علماء کا راستہ روکا، جمعیت علماء کا راستہ روکا۔ ہم نے ایک طویل جدوجہد کے بعد آج عوام میں ایک مقام پیدا کیا ہے، اور اب الیکشن کے نظام میں ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ تم چوری کیسے کرتے ہو۔ آپ نے دیکھ لیے 2018 کے الیکشن میں کہ 2018 کے الیکشن میں جو نتائج آئے انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ جمعیت علماء ایسا رد عمل دے گی۔ اور میں اپنے بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ تو آج اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ہم نے 2018 کے بعد اسرائیلی ایجنٹ کے خلاف جنگ لڑا، اور آج اس کو مکافات عمل کے حوالے کیا ہے۔ آئندہ بھی یہ جان لو، یہ بفرا ہوا اجتماع، یہ بفرا ہوا انسانوں کا منظر، یہ تمہیں ہڑپ کر جائے گا۔ اب اس کے بعد معذرت خواہانہ سیاست کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب آمنا سامنا ہوگا، دو بدو مقابلہ ہوگا۔ تم نے پاکستان کا چہرہ تبدیل کر دیا ہے۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ لوگوں کی قربانیاں لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ حاصل کی، ہزاروں ماؤں بہنوں کی عزتیں اور عصمتیں قربان ہوئیں، لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون پیش کیا، خون کا نذرانہ پیش کیا، اور تم نے 75 سال لا الہ الا اللہ کے نعرے کا مذاق اڑایا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے کردار پہ؟ 75 سال لا الہ الا اللہ کے نعرے کا مذاق اڑایا ہے۔ اب ہم تمہیں اس کا مذاق نہیں اڑانے دیں گے۔ اور یاد رکھو، جمعیت علماء کرسی اقتدار کی ایسی حریص نہیں کہ وہ تمہاری خوشامد اور ناجائز کو قبول کرے گی۔ ہم ڈنکی کی چوٹ اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو عالمی قوتوں کے اثر و نفوذ سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سیاسی طور پر بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہم معاشی طور پر بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہم دفاعی طور پر بھی آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ ہم ملک کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اداروں کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، بین الاقوامی اثر و نفوذ سے نکالنا چاہتے ہیں، اور یہ آواز ہم دیتے رہیں گے۔ امریکہ کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مرضی سے اقتدار میں نہیں آنا چاہتے۔ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں کون کون لوگ پاؤں لمبے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امریکہ بہادر ہمیں کرسی پہ بٹھائے گا۔ تو بیٹھے رہو، لیکن تمہارے خلاف ہماری جدوجہد آزادی جاری رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ میرے محترم دوستو، امن مارچ عوام کی بیداری کہ سندھ کا مسئلہ ہے، اور یہاں پر ڈاکوؤں کا راج، یہاں پر سٹریٹ کرائمز عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کر دے۔ قانون کدھر ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کی زندگی کو تحفظ دے۔ آپ تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہم سے پوچھیں نا، خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے؟ آپ ہم سے پوچھیں بلوچستان میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں تو ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں، یہاں تو شہری محفوظ نہیں ہیں، وہاں تو ادارے بھی محفوظ نہیں ہیں، شہری تو شہری رہے۔ جہاں ادارے محفوظ نہ ہوں وہاں عام شہری کیسے اپنے تحفظ کا احساس کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کمزور ہو چکا ہے، اور ملک کمزور ہوگا تو ادارے بھی کمزور ہوں گے۔ ہم معاشی لحاظ سے دیوالیہ پن کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور صوبہ خیبر پختونخوا نے تو سرکاری طور پر کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے اب پیسہ نہیں ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔
पाकिस्तानी मईशत को ज़मीन बोस कर दिया गया। और मैं आपके जलसों में कहता रहा हूँ, अदम से पहले जब अभी कोई तब्दीली नहीं आई थी, तब भी मैंने आपके इज्तिमात में कहा कि मुल्क इस हद तक डूब चुका है कि अब उसको दोबारा उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे सियासी ज़ुआमा स्टेज पर ये बात थे कि अगर इक़्तिदार मेरे पास आया 6 माह में मुल्क की मईशत को संभाल लूंगा। मैं उन्हें कहा करता था कि नहीं, अब वो हालात नहीं, अब इमारत हिल चुकी है। इस इमारत को इसी हालत में दोबारा जोड़ देना शायद मुश्किल होगा, वक्त लेगा। इसीलिए हम कहते थे फौरन इलेक्शन कराओ, इसमें ताखीर मत हो। लेकिन बहरहाल जो दोस्तों की राय थी, हम भी उनके साथ चले। आज फिर इलेक्शन का ऐलान तो हो गया है, और खुदा के वक्त पर इलेक्शन हो जाए। गैर यकीनी सूरत में इंतखाबात होंगे, सारे चैलेंजेस हमें कबूल हैं। हम मैदान में उतरेंगे इंशाअल्लाह, बल्कि हम उतर चुके हैं, और इन कुव्वतों को इंशाअल्लाह पाकिस्तान में शिकस्त देंगे। ये एक नजरियाती कुव्वत है, और इस नजरियाती कुव्वत ने कभी अपनी नजरियाती जंग पर कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी समझौता नहीं किया। हालात के साथ जरूर चले हैं, फराखदिली के साथ चले हैं, बर्दाश्त के साथ चले हैं, और हमने दुनिया को बर्दाश्त का सबक दिया है। लेकिन हमेशा मजहबी दुनिया को कहा जाता है ये बड़े इंतहा पसंद हैं। चूंकि आज अमेरिका और मगरबी दुनिया वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हमारे गुलाम ज़हनियत उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करती है। जब वो कहते हैं मजहबी लोग इंतहा पसंद हैं, तो ये भी कहते हैं मजहबी लोग इंतहा पसंद हैं। और मजहब के खिलाफ उनके रवैये इतने सख्त हैं कि जब इस किस्म की मजलिस में वो बैठते हैं तो इनके चेहरे खून से ऐसे सुर्ख जाते हैं, लगता है अब इनके गुस्से का खून चेहरों से छलक कर बाहर आ जाए। तुम इतने तंग नजर हो, वुसअत ज़र्फ पैदा करो। बर्दाश्त तो हमारे अंदर है। और पाकिस्तान के तूल अर्ज़ के उलमा और मदारिस, इनके किरदार को देखो। अगर 2-4 लोग बंदूक की तरफ चले गए तो तुमने सारा इस्लाम उनके नाम पे अलाट कर दिया, तुमने सारी ताबीरात उनके हवाले कर दी। पाकिस्तान के उलमा का इत्तिफाक है, तूल अर्ज़ में जमीयत उलमा मौजूद है, विफाकुल मदारिस मौजूद है, तमाम मकातिब फ़िक्र की सियासी तंजीमें मौजूद हैं, और वो सब के सब एक ही बात पर है कि पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपने मकासद के लिए जदोजहद करती है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाह मैं जनाब इस्माइल हनिया का भी शुक्रगुजार हूँ, हमास के सरबराह का, कि उन्होंने जूम पर आपसे बराह रास्त खिताब किया, और हम उनके मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं। अब यह सिलसिला आगे चलेगा, लेकिन मैं सोचता ये हूँ कि अगर अमेरिका और यूरोप खुलकर इसराइल की हिमायत में मैदान में आ चुके हैं और अपनी जंगी कुव्वत इसराइल के करीब तक ला चुके हैं, मैदान जंग में उतर चुके हैं, तो फिर इस्लामी दुनिया क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है? इस्लामी दुनिया के हुक्मरान क्यों बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं? किस दिन का उनको इंतजार है? हाँ, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर ताकत का तवाज़ुन भी होना चाहिए। इस वक्त इन हालात में रूस और चीन जो फिलिस्तीन के मुजाहिदीन की हिमायत कर रहे हैं, वो आलमी कुव्वतें हैं, उन
को भी आलमी क़ुव्वत मैदान जंग में लाना चाहिए, अमली तौर पर मैदान में आए, ताकि दुनिया के अंदर ताकत का तवाज़ुन पैदा हो और एक तरफा ताकत का शिकार इस्लामी दुनिया ना हो सके। उनको मैदान में आना होगा, इस्लामी बिरादरी को यकजहती का मुजाहरा करना होगा। ये बेहिसी, इसे इस्लामी दुनिया कबूल करने को तैयार नहीं है। और याद रखें, हम जमहूरी लोग हैं। हमने जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी ताहद नज़र इंसानों का समंदर पूरे मुल्क में इकट्ठा किया और इस्लामी दुनिया में भी अवाम मैदान में आए, लेकिन हुक्मरानों ने अवाम की राय को एहतराम नहीं दिया। ये जमहूरियत है दुनिया की कि जबर का फैसला कौम पर मुसल्लत करो और कौम की राय का एहतराम न करो। पूरी दुनिया का मुसलमान एक तरफ था और हुक्मरान दूसरी तरफ थे, लेकिन हुक्मरानों ने जबर की बुनियाद पर अपने फैसले हम पर मुसल्लत किए और आज नतीजा क्या निकला? अफगानिस्तान तो वही है। अब अमेरिका वहां किधर है? उसने कहा था कि ये लोग इंसानी हक के मुस्तहिक नहीं हैं और जनेवा कन्वेंशन के तहत जो कैदियों के हुकूक हैं, इनको ये हक भी नहीं दिया जाएगा। जानवरों के भी हुकूक होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा अफगानों के कोई हुकूक नहीं है। और जो फिर उनके साथ किया गया, वो वहशतनाक किस्म के मनाजिर आदमी देख नहीं सकता। ये है उनकी जमहूरियत। हाथों से और इनकी कोहनियों से इंसानियत का खून टपक रहा है और फिर भी इंसानी हुकूक करते हैं, फिर भी वो खुद को इंसानी हुकूक का लंबरदार समझते हैं। मैं वाज़ेह तौर पर अपना नजरिया देना चाहता हूँ कि अमेरिका और मगरब को अपने इस किरदार के साथ इंसानियत की क़ियादत करने का कोई हक हासिल नहीं है। अवाम के ख्वाहिश को और उनके नजरिए को कबूल करना हो। कौम ये है जो यहाँ बैठी, कौम वो है जो क्वेटा में जमा हुई, कौम वो है जो पेशावर में जमा हुई, और इंशाल्लाह मजीद ये सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब में भी जलसे होंगे इंशाल्लाह, और उसका शेड्यूल हम दे रहे हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस सिलसिले को आगे ले जाना है और इस जद्दोजहद को आगे ले जाना है, और किसी कीमत पर हम किसी के सामने शिकस्त तस्लीम करते हैं। हम अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे और अपनी क़ुव्वत को आगे बढ़ाएंगे, और अल्लाह की ताकत के साथ हम इंशाअल्लाह मुल्क की सियासत में आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी हिम्मत को कबूल फरमाए, आपकी इस 12 दिन की मेहनत और तकाम को अल्लाह कबूल फरमाए, और इस पर आपको दुनिया और आखिरत में अजर अज़ीम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यर्जिउस्सलाम। हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम। तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजलुका फी नुहुरिन व नऊज़ुका मिन शुरूरिन वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।